بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولین سیوستا کا حکمران تھا۔ اس کی دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کا نام فلورا اور میری تھا۔ شاہی خاندانوں میں رواج تھا کہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم و تربیت اور شاہی آداب سکھانے کے لیے شہنشاہ کے محل میں بھیج دیتے تھے، جہاں اسے کم سے کم 1 سال رہنا پڑتا تھا۔ فلورا کی عمر جب 16 سال ہوئی تو اس کا باپ جولین اسے شہنشاہ فریڈرک کے محل میں چھوڑ آیا۔ فلورا بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ شہنشاہ نے اسے دیکھا تو اس کی نیت اس لڑکی پر خراب ہو گئی اور اس نے رات کو اسے اپنے کمرے میں بلا کر شراب کے نشے میں اس کی آبرو ریزی کی۔ اس بات کا جب فلورا کے باپ کو پتہ چلا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے اسی وقت فریڈرک سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جولین اکیلا بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن موسیٰ بن نصیر سے مدد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اندلس پر حملہ کر دو، اس طرح تمہیں اندلس مل جائے گا اور مجھے اپنی لڑکی کی بے عزتی کا بدلہ۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ سے اجازت کے لیے خط لکھا تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے، جو صحیح معنوں میں مرد مومن تھا، موسیٰ کو اندلس پر حملے کی اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ دشمن پر مکمل بھروسہ نہ کرنا چاہیے، اس لیے جولین کا امتحان ضرور لیا جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنی مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس میں کچھ ہی دیر غور و خوض، تبادلہ خیالات اور تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سیوستا روانہ کر دیا گیا کہ وہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اس پیغام کا منتظر تھا۔ وہ پیغام ملتے ہی عجلت میں تیار ہوا۔ اس نے اندلس کے سابقہ بادشاہ ویٹزا کے بھائی اوپاس کو بھی ساتھ لے لیا، جو سیوستا میں ہی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ بن نصیر کے دارالحکومت کیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں ویٹزا کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا اعلیٰ افسر بھی ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسا ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں، تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتاؤ، جولین نے کہا۔ میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں بدکار راڈرک سے اپنی بیٹی کی بے عزتی کا انتقام لوں گا، میرے محترم، اوپاس نے کہا۔ میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی ویٹزا کو قتل کرا دیا تھا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے 1 دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے۔ اب انتظار نہیں کراؤں گا، موسیٰ نے کہا۔ جولین، ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو، تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو، اندلس کے کسی ساحلی علاقے پر حملہ کر دو۔ اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ۔ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہ راڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئی، جولین نے کہا، اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا، موسیٰ نے کہا۔ میرے دستے ساحل پر موجود رہیں گے۔ میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو مجھے فوراً اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ جولین اور اوپاس دونوں نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ مل کر اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ دونوں اسی وقت سیوستا روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے کچھ دستے اپنی فوج کے سالار طریف بن مالک کی زیر کمان اس حکم کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ سیوستا کے مضافات میں جا کر خیمہ زن ہو جائے، اور جب جولین اپنے دستے اندلس کی طرف بھیجے تو طریف اپنے دستے تیاری کی حالت میں سیوستا کے ساحل پر لے جائے۔ جب سالار طریف اپنے دستوں کے ساتھ سیوستا پہنچا تو جولین نے باہر آ کر اس کا شاہانہ استقبال کیا اور طریف سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر اس کے محل کے ایک کمرے میں قیام کرے۔ کاؤنٹ جولین، سالار طریف نے کہا، ہمارے ہاں سالار اپنے آپ کو اپنے لشکر کے کسی ایک سپاہی سے بھی بلند و برتر نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے الگ رہے۔ میدان جنگ میں سالار اور سپاہی ایک ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب برتری اور کمتری کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ ہمیں نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صف در صف کھڑے مسلمانوں میں عہدیدار کون ہے اور سپاہی کون ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم اگلی صف میں ہوتے ہیں اور ہم پچھلی صفوں میں۔ سالار کو یہ سعادت حاصل ہے کہ امامت کے فرائض وہ ادا کرتا ہے۔ آپ اندلس فتح کر لیں گے،
जूलियन ने पुरजोश लहजे में कहा, यही इस्लाम की ताकत है जो आपने बयान कर दी है। हमारे सालार सिपाहियों को अपने ज़ाती मुलाजम समझते हैं, फिर भी मेरे महल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। फिर वो रात आई जब जूलियन की फौज बादबानी कश्ती में सवार हो रही थी और सालार तरीफ के दस्ते तैयार होकर साहल पर पहुंच गए थे। समुद्री मुसाफत सिर्फ 12 मील थी। जूलियन की जंगी कश्तियों के मलाह तजर्बाकार थे। समुंदर पुरसकून था, हवा तेज थी और मुवाफक भी। मलाहों ने मुतवक्के वक्त से पहले जूलियन की फौज को उंदलस के साहल पर पहुंचा दिया। कमान ओपास के हाथ में थी। जूलियन साहल पर खड़ा था। उसके साथ उसकी बीवी और दोनों बेटियां फ्लोरा और मैरी खड़ी थी। फौज की रवानगी तक फ्लोरा ने बाप के लिए मसला खड़ा किए रखा था। वो जिद कर रही थी कि मर्दाना कपड़े पहनकर अपनी फौज के साथ उंदलस जाएगी। उसने बाप का जंगी लिबास निकाल लिया था, ढाल और तलवार भी तैयार कर ली थी, लेकिन जूलियन उसे इजाजत नहीं दे रहा था। माँ भी उसे रोक रही थी। क्या मैं शाहसवार नहीं? फ्लोरा चीख चिल्लाकर कहती रही थी। क्या मैं बर्ची और तलवार नहीं चला सकती? क्या मेरी कमान से निकले हुए तीर जाया हो जाते हैं? माँ और बाप उसे बता रहे थे कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन जब दुश्मन बर्चियां और तलवारें लेकर मैदान में आता है तो अपनी बर्ची और तलवार देखकर चलानी मुश्किल हो जाती है और कमान से निकले हुए तीर हवा में जाया हो जाते हैं। मारना और मरना मर्दों का काम है। बेआबरू मैं हुई हूँ, फ्लोरा ने कहा था। जिस्म मेरा नोचा गया है। उंदलस पर पहली इंतकामी ज़रब में मुझे शामिल होने दो। बाप ने उसे इस वादे पर रोक लिया था कि जब मुसलमान हमला करके शाह राड्रिक को शिकस्त देंगे तो वो मूसा बिन नसीर से कहेगा कि राड्रिक को जिंदा पकड़कर उसके हवाले कर दिया जाए। फिर फ्लोरा उसे अपने हाथों कत्ल कर सकती है। फ्लोरा मुतमईन हो गई थी और अपनी फौज को अलविदा कहने अपने बाप के साथ साहिल तक आई। वहां उसे मुसलमान सालार तरीफ बिन मालिक नजर आ गया। बाप ने उस सालार के साथ तारुफ करवाया तो फ्लोरा तरीफ के पीछे पड़ गई कि उसके बाप से इजाजत ले दे कि वो अपनी फौज के साथ चली जाए। तुम्हारा बाप शायद तुम्हें इजाजत दे दे, सालार तरीफ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। हम औरतों की इज्जत और आबरू पर जाने देने वाले औरतों को दुश्मन के सामने मैदान में कैसे जाने दे। आधी रात के बाद उंदलस के जनूबी साहल के एक कस्बे मैदन स्पानू के लोग गहरी नींद सोए हुए थे। साहल के साथ फौजी चौकियां भी थीं जिनमें फौजी मौजूद थे जो कभी के सो गए थे। जिन संतरियों को जागते रहना था वो कहीं खड़े और कहीं बैठे ऊँग रहे थे। उन्हें कोई खतरा नहीं था। वो जानते थे कि सेवस्ता उंदलस का दरवाज़ा है और इस दरवाजे पर मजबूत कला और जूलियन की फौज मौजूद है। खतरा मुसलमानों का ही हो सकता है। वो सेवस्ता का रास्ता छोड़कर किसी दूर के साहली मकाम से आ सकते थे, लेकिन अरबों के मुतल्लिक मशहूर था कि वो जहाज रानी से वाकिफ नहीं और समुद्री लड़ाई लड़ने का भी उन्हें तजर्बा नहीं। ये थी भी हकीकत। वो इस्लाम का इब्तदाई दौर था। साल 92 हिजरी था। अरबों को अभी समुद्री लड़ाई लड़ने का मौका नहीं मिला था। उंदलस की साहली फौज बेफिक्र थी। जूलियन की फौज मैदन स्पानो से जरा दूर रुकी और हुक्म के मुताबिक कश्तियों से खामोशी से उतर गई। उनका कमांडर उपास जानता था कि फौजी चौकियां कहां कहां हैं। उसने अपने दस्तों को उन चौकियों पर हमले के लिए तकसीम कर दिया और तेज रफ्तार हमले का हुक्म दिया। संतरियों ने अपनी तरफ साए बढ़ते देखे, लेकिन ये मालूम होने से पहले कि कौन आ रहा है उन पर क्यामत टूट पड़ी। चौकियों में सोए हुए फौजियों को उठने की मोहलत ही न मिली और वो मारे गए। चौकियां दूर दूर फैली हुई थी। सुबह तलू होने से पहले उनका सफाया कर दिया गया। उनमें से कोई एक भी ना भाग सका जो किसी बड़े शहर तक पहुंचकर इतला दे सकता कि किसी फौज ने हमला कर दिया है। सुबह तलू होते ही जूलियन की फौज 2-3 कस्बों में दाखिल हो गई। हुक्म के मुताबिक फौज ने लूट मार शुरू कर दी। जूलियन ने हुक्म दिया था कि कोई गिरजा घर खड़ा ना रहने दिया जाए। उसके फौजियों ने बाज गिरजों को आग लगा दी और बाज गिरा दिए। शाम तक सेवस्ता की फौज ने लूट मार का बाजार गर्म रखा। कोई खूबसूरत और जवान लड़की नजर आई तो उसे भी उठा लिया और जिस तरह यह फौज बड़ी कश्तियों में आई थी उसी तरह कश्तियों में सवार होकर सेवस्ता वापस पहुंच गई। जूलियन ने यह भी हुक्म दिया था कि ऐलान किया जाए कि यह सेवस्ता की फौज है। चनाचे उसके फौजी लूट मार के दौरान यह ऐलान करते रहे। जब फौज वापस आई तो जूलियन ने मूसा बिन नसीर के सालार तरीफ से पूछा कि उसे यकीन आया या नहीं। आप सालार हैं, जूलियन ने तरीफ से कहा। क्या मैंने अपने लिए यह खतरा पैदा नहीं कर लिया कि राड्रिक सेवस्ता पर जवाबी हमला करेगा? उसे हमला करना चाहिए, सालार तरीफ ने कहा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका बाजगुजार उसके मुल्क में आकर उसकी फौज का कत्लेआम और शहरियों के घरों का सफाया कर जाए। लेकिन काउंट जूलियन, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेरे ये दस्ते यहीं रहेंगे और साहल पर हर वक्त चौकस रहेंगे। आप फौरी तौर पर हमारे अमीर मूसा बिन नसीर के पास जाएं और दोस्ती का बाकायदा मुआहदा कर लें, फिर उसकी इत्तला शाह राड्रिक तक पहुंचा दें।
दोस्ती का मुआहदा हो गया। मूसा को यकीन तो आ गया था कि जूलियन धोखा नहीं दे रहा, लेकिन वो इस यकीन को पुख्ता करना चाहता था। इसका उसने यह तरीका इख्तियार किया कि उंदलस के साहिल से कुछ दूर जजीरे एगेसिरास का इंतखाब किया और उस पर हमले का प्लान बनाया। उसमें उसने अपने साथ जूलियन की फौज को भी शामिल कर लिया। इस मुश्तरका फौज के हमले से मूसा ये देखना चाहता था कि जूलियन और उसकी फौज किस हद तक काबिल एतमाद है, और यह भी जायजा लेना था कि उंदलस की फौज लड़ने में कैसी है और उसके कमांडर फन हरब व ज़रब में कैसे हैं। मूसा ने उस मुश्तरका फौज की कमान सालार तरीफ बिन मालिक को दी। इब्ने मालिक मूसा ने सालार तरीफ को आखिरी हदायत देकर कहा, खुद भी देखना और अपने नायबीन को भी कह देना कि जूलियन की फौज के कमांडरों को देखते रहें कि हमें धोखा तो नहीं दे रहे। यह भी देखना कि ये लड़ने में जुर्रतमंद हैं या बुज़दिल। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जूलियन अपनी फौज के कमांडरों से कह रहा था, मुसलमानों को यह कहने का मौका ना देना कि जूलियन की फौज बुज़दिल है, और कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मुसलमानों को ये शक हो कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मुसलमानों के अमीर को अभी हम पर एतबार नहीं आया। याद रखो, अपनी आन पर जाने कुर्बान कर देने वाले बहादुर धोखा नहीं दिया करते। तुम एक धोखेबाज से इंतकाम लेने जा रहे हो। वो धोखेबाज उंदलस का बादशाह राडरक है। तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि राडरक हमारा दुश्मन है। तुम उस पर एक वार कर चुके हो। मैं एक ही बात पर जोर दूंगा कि मुसलमानों को यह तासुर ना देना कि तुम बुज़दिल और धोखेबाज हो। वो जुलाई 710 ईस्वी की एक रात से जन्म लेने वाली एक शहर थी जिसकी तारीकी में मूसा बिन नसीर और जूलियन की फौज जंगी कश्तियों में सवार हुई। किसी भी तारीख में जूलियन की फौज की तादाद नहीं लिखी। मुसलमानों की फौज की तादाद 400 प्यादे और 100 घोड़सवार थे। एगेसिरास बहुत बड़ा जजीरा नहीं था और यह बहुत छोटा भी नहीं था। जासूसों के जरिए पहले ही मालूम कर लिया गया था कि वहां उंदलस की कितनी फौज है और कहां कहां है। कश्तियां ऐसे किनारे पर रोकी गईं जहां दरख्तों और हरियाली से ढकी हुई टीकरियां थी। उधर से जजीरे की फौज को नजर नहीं आ सकता था कि कोई फौज उतर रही है, लेकिन सालार तरीफ और जूलियन के दस्ते अपने आप को दुश्मन से छुपा ना सके। ये कश्तियां जब खुले समुद्र में जजीरे की तरफ जा रही थीं तो जजीरे के लोगों को दूर से नजर आ रही थी। कश्तियां किनारे लगी, उनमें से घोड़ों को उतारा गया। पैदल फौज भी उतर गई, लेकिन सवार अभी घोड़ों पर सवार नहीं हुए थे और प्यादे अभी पेशकदमी की तरतीब में नहीं आए थे कि टीकरियों से उन पर तीरों की बौछारें आने लगी। तीरंदाज दरख्तों के पीछे घने दरख्तों की शाखों और पत्तों में और हरी भरी झाड़ियों में छुपे हुए थे। उंदलस के एक साहली इलाके पर जूलियन की फौज एक हमला कर चुकी थी, इसलिए साहली इलाकों और जजीरों में फौज चौकन्नी और तैयार रहने लगी थी। सालार तरीफ ने घोड़सवारों को, जो कि तीरों से बचने के लिए बिखर गए थे, हुक्म दिया कि घोड़सवार टीकरियों को घेरे में ले लें, लेकिन तीरों की जद से दूर रहें। प्यादे पहले ही इधर उधर हो गए थे। ज्यादा तादाद पीछे समुद्र में चली गई थी, बाज कश्तियों में जा छुपे, सामने सिर्फ जख्मी रह गए। जूलियन के दस्तों का कमांडर ओपास था। उसने भाग दौड़कर अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और उन्हें हुक्म दिया कि टीकरियों के अतराफ से अकब से ऊपर जाएं। सिपाही दौड़ पड़े। तीरंदाज सामने यानी समंदर की तरफ तीर बरसा रहे थे। ओपास के सिपाही दाएं बाएं और पीछे से टीकरियों पर दरख्तों, झाड़ियों और घास की ओट में जाने लगे तो तीरंदाजों के रुख बदल गए, बल्कि तकसीम हो गए। ओपास अपने सिपाहियों को ललकार रहा था और सिपाही बड़ी जुर्रत से तीरों के सामने ऊपर चढ़ते जा रहे थे। सालार तरीफ ने ओपास के सिपाहियों की ये बेखौफी देखी तो उसने अपने दस्ते के तीरंदाजों से कहा कि वो टीकरियों के नीचे जो दरख्त हैं उन पर चढ़ जाएं और दुश्मन के तीरंदाजों को निशाना बनाएं। मुसलमान तीरंदाज दरख्तों पर चढ़ने लगे तो चंद एक दुश्मन के तीरों से जख्मी होकर गिरे। बाकी तीरंदाज दरख्तों पर जाकर तीर फेंकने लगे। जजीरे के तीरंदाज भागने लगे, लेकिन टीकरियां सवारों के नरगे में थीं, उनमें कोई जिंदा ना भाग सका। जजीरे की बाकी फौज हमला आवरों के मुकाबले के लिए तैयार थी। सालार तरीफ ने अपने घोड़सवारों को टीकरियों के पीछे छुपाकर उनके कमांडरों को एक इशारा बताया और कुछ हदायत दी। दोनों फौजों का तसादम हुआ। उंदलस की फौज जल्दी मुंह मोड़ने लगी। सालार तरीफ ने अपने छुपे हुए सवारों को इशारा दे दिया। सवार बहुत तेजी से टीकरियों के पीछे से निकले और सारपट घोड़े दौड़ाते दुश्मन के अकब में चले गए। दुश्मन के लिए यह चाल गैर मुतवक्के थी। सवारों ने अकब से हमला कर दिया और जजीरे की फौज का कत्ले आम होने लगा। मार्का जल्दी खत्म हो गया। उस जजीरे का नाम बदलकर जजीरतुल हज़रार रख दिया गया। वापस आकर सालार तरीफ ने मूसा बिन नसीर को बताया कि जूलियन धोखा नहीं दे रहा और उसके सिपाही बेजिगरी से लड़े हैं। उसने दूसरी बात यह बताई कि उंदलस की फौज में लड़ने का जज्बा कमजोर है और उसकी क़यादत में भी कोई ऐसी खूबी नहीं जिससे हम परेशान हो जाएं।
मूसा बिन नसीर ने उंदलस पर हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जूलियन एक नौ मुस्लिम मुगीस अल रोमी को साथ लिए मूसा के पास आया। मुगीस अल रोमी गोत था। जूलियन मुसलमान फौज के साथ उंदलस जाने के इरादे से आया था। वो मुगीस अल रोमी को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मूसा बिन नसीर पसोपेश करने लगा। मूसा, जूलियन ने कुछ शिकायत और कुछ गुस्से के लहजे में कहा, क्या अब भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं आया? मुझे कुछ ऐसा ही शक था। मैं तुम पर एतमाद पुख्ता करने का एक और जरिया साथ लाया हूँ। वो उठकर बाहर चला गया। उसके साथ सेवस्ता से खासा बड़ा काफिला आया था, जिसमें उसके मुलाजम थे, मुहाफिज थे, फौजी और शहरी मुशीर थे, और उस काफिले में औरतें भी थीं। जूलियन वापस मूसा के कमरे में आया तो उसके साथ दो बड़ी ही खूबसूरत लड़कियां थीं। उनका हुस्न गैर मामूली था। उनके बदन मशहूर कर देने वाली कशिश वाले थे। ये मेरी बेटियां हैं, जूलियन ने कहा। यह फ्लोरा है और यह उसकी बहन मैरी है। मैं इन दोनों को यरगमाल के तौर पर तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये मेरी इज्जत और आबरू हैं। फ्लोरा मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैंने अपने एक ताकतवर और पुराने दोस्त को दुश्मन और एक पुराने दुश्मन को दोस्त बना लिया है। तुमने देख लिया है कि मैंने अपनी गैरत से दीवाना होकर इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया है कि इतने ताकतवर बादशाह के मुल्क पर हमला किया और फिर तुम्हारी फौज के साथ अपनी फौज उसके जजीरे पर कब्जा करने के लिए भेज दी। मूसा बिन नसीर, मैं अपनी ये गैरत आज तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। अगर मैंने या मुगीस अल रोमी ने तुम्हारी फौज को मामूली सा भी धोखा दिया तो तुम मेरी बेटियों को लोंडियां बना लेना या इन्हें वहशी बर्बरों के हवाले कर देना। किसी भी मुर्रख ने यह तफसील नहीं लिखी कि मूसा ने जूलियन की इस पेशकश को ठुकराया था या नहीं, या मजीद क्या बातें हुई थी। तारीख में यही आया है कि जूलियन ने अपनी दोनों बेटियां यरगमाल में दे दी थीं। जूलियन ने दूसरी पेशकश ये की थी कि वो अपनी तमाम फौज मूसा की फौज के साथ उंदलस भेजेगा। मूसा ने यह पेशकश दो टोक अल्फाज में ठुकरा दी थी। अलबत्ता इतनी मदद और इतना ही तावन मांगा कि सेवस्ता मुसलमान फौज की रस्तगाह होगी और वक्तन फवक्तन उंदलस को जाने वाले और वहां से आने वाले मुजाहिदीन को सेवस्ता कले में खाने पीने की, आराम और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की सहूलत हासिल होगी। फिर जूलियन से यह मदद मांगी गई कि उंदलस के साहल तक पहुंचने के लिए कश्तियां और बहरी जहाज जूलियन दे। मूसा बिन नसीर ने उसी रोज़ खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के नाम एक पैगाम लिखवाकर कासद के हाथ दमिश्क भिजवा दिया। खलीफा उंदलस पर हमले की इजाज़त तो पहले ही दे चुका था, लेकिन मूसा दूर अंदेश आदमी था। उसने दीगर बातों के अलावा खलीफा को लिखा, उंदलस पर फौज कशी की एक बार फिर इजाज़त लेने में वक़्त ज़ाया करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, लेकिन आपने हिंदुस्तान में जो लश्कर भेजा है उसकी ज़रूरियात ऐसी सूरत पैदा कर सकती हैं कि मैं उंदलस की मुहिम मुलतवी कर दूँ। हो सकता है दो महाज आपके लिए दुश्वारियाँ और ऐसे मसाइल पैदा कर दें कि दोनों महाज कमज़ोर हो जाए या दोनों में से एक कमज़ोर हो जाए। खलीफा वलीद ने नहायत हौसला अफजा जवाब दिया। उसने लिखा कि अल्लाह का नाम लो और तमाम तैयारियां मुकम्मल करके लश्कर को रवाना कर दो। सालार का इंतखाब सोच समझ कर करना।